Good morning, sir. Okay, good morning. So Good morning, sir. let's start. We will start today. First we will recap the last lecture that we have discussed. In the last lecture हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे पास एक लॉन्ग फिन थी, ठीक है, और उस लॉन्ग फिन पे हम लोगों ने दो चीजें निकाली थी. एक तो थीटा के टर्म्स में हमने इक्वेशन निकाली थी, और दूसरा हमने इक्वेशन जो निकाली थी वो हमने क्यू फिन निकाला था. ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए. जस्ट रिकैप द लास्ट लेक्चर. In the last lecture, we have considered this particular fin of cylindrical shape. You have to also remember that this shape, this shape is not constant. Okay, so ये किसी भी तरीके की shape हो सकती है, equation यही आएगी. ठीक है, या rectangular भी लोगे तो भी equation यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कहीं पे भी हमने इसका जो एरिया है उसको π/4 d square हमने यूज नहीं किया है. So if the question comes that you have to derive equation for rectangular fin, then the equation will be same on a diagram. Here you have to draw the diagram of rectangular fin. ठीक है, तो उस केस में ये सेम इक्वेशन ड्रॉ होगी और फाइनल इक्वेशन यू विल गेट द सेम फाइनल इक्वेशन, एंड दैट इज द first we have what we have done in this particular derivation. We have taken a small element, as you can see from red color here. So in this element we have considered at the distance x from the base. बेस से x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट लिया था, और इस एलिमेंट को हमने कंसीडर करते हुए अपना जो इक्वेशन है उसको डिराइव किया था. और ये जो एलिमेंट है इसको जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, जिसमें देख सकते हो कि qx इज द हीट that is entering in this element. That means the conduction heat that is entering. Basically this is a conduction part, and qx plus dx is leaving from that particular element, and the rest, that means the dq convective, is convected through the convection into the surroundings. Okay, so we have applied the energy balance in this small element, and what energy balance says that the total energy will remain constant. So the net in the control volume, if we apply the energy balance, net energy entering must be equal to net energy leaving. So net energy entering is qx enter कर रहा है, qx plus dx लीव कर रहा है, q dq convective लीव कर रहा है, यही किया था. And as you know, qx plus dx is given by qx plus del qx by del x into dx. So we have written down this qx plus dx as this. Qx will be cancelled out, and after that we are solving this x. We have put the value of dq convective. Dq convective is the area there, that area you have to take. So it will be dq convective will be calculated from Newton's law of cooling, which is given by h das t minus t infinitive. Okay, so we have taken the temperature of this surface to be T, so that's why it is written as T minus T infinitive. और इसी को हमने आगे सॉल्व किया था. सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, d square theta upon dx square minus m square theta, which can be also written as d square minus m square. ठीक है, is equal to 0. So from mathematics you already know that the solution of these type of equation is given by theta is equal to c1 e raised to the power mx plus c2 e raised to the power minus mx. This is the final equation that we have got, but the value of c1 c2 will always depend upon the condition or case that you would consider. Okay, तो C1 C2 की वैल्यू डिपेंड करेगी कौन सा केस ले रहे हो. तो पहला केस हमने इसमें लिया था, ये तो एक जनरल इक्वेशन है, तो C1 C2 जो कांस्टेंट है वो अलग अलग आएंगे अलग अलग केस के लिए. ठीक है, और मैंने बताया था कि सबसे पहला जो केस लिया हमने, इसमें लिया था फिन इज वेरी वेरी लॉन्ग, दैट मींस फिन इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ठीक है, L वी हैव टेकन द L एज इनफाइनाइट, L को हमने इनफाइनाइट ले लिया था. ठीक है, एंड वी हैव अप्लाइड द बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री कंडीशन मैंने बोला था पहली बाउंड्री कंडीशन तो हर किसी में सेम रहेगी, चाहे कोई सा भी केस लो. ठीक है, कि जो बेस पे टेम्परेचर होगा दैट विल बी ऑलवेज T नॉट. ओके, दैट मींस एट x इज इक्वल टू 0 T विल बी T नॉट, एंड बाय सॉल्विंग दिस वी हैव टेकन माइनस T इंफिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे माइनस T इंफिनिटी कर दिया, और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट आ गया. दिस इज द इक्वेशन or this is the boundary condition that will remain same for every case. Whatever is the case, it will always remain same. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पहली बाउंड्री कंडीशन वही रहेगी हमेशा. दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे केस के अकॉर्डिंग चेंज होगी. ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन मैंने बताई थी, टेम्परेचर एट एंड ऑफ इन्फिनिटिव लॉन्ग फिन्स इज इक्वल टू T is equal to T infinitive at x is equal to infinitive. So we have taken this theta, you know, T minus T infinitive, we have assumed the theta as T minus T infinitive. So at x is equal to infinitive, this T becomes T infinitive, so theta becomes 0. That means if you take infinitely long fin,
then theta becomes 0 because the surrounding temperature of the fin becomes equal to the tip temperature of the fin becomes is equal to the temperature of the surrounding if the fin is very long or it is infinite long. ठीक है, so now we have again used the same equation that we have derived theta is equal to this. So we have to find out the C1 and C2 from these two by using these two boundary conditions that we have discussed above. ठीक है, जो ऊपर डिस्कस किए बाउंड्री कंडीशन उनसे C1 C2 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो पहली कंडीशन जो डिस्कस करी थी बाउंड्री की फ्रॉम 1, ठीक है, उससे लगा दिया थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, तो एक इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन जो दूसरा हमने जो बाउंड्री कंडीशन ली थी कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिया था जब, तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 आ गई थी. ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और C1 C2 की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, सॉल्व कर करके हमने C1 C2 की वैल्यू निकाल ली. C1 0 आ गया और C2 की वैल्यू थीटा नॉट आ गई. ठीक है, और C2 की वैल्यू हमारे थीटा नॉट आ गई. तो इसको हमने जो है आगे सॉल्व किया हुआ था. ये वैल्यू जो है हम जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमने पुट कर दिया है. यहाँ पे देखो ये हमने C1 को 0 और C2 को थीटा नॉट. ठीक है, ये हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि हमारा सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज C1 e raised to the power mx plus C2 e raised to the power minus mx. We have put all the value of C1 and C2 in this equation, and finally we have got this equation for the infinite long fin. That means theta will be equal to theta naught e raised to the power mx, or it may be also written as theta upon theta naught is equal to e raised to the power minus mx. Okay, so infinite long fin के लिए थीटा और थीटा नॉट के बीच ये रिलेशन हो गया. उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा वी हैव assumed theta is t minus t infinitive and theta naught is as t naught minus t infinitive, where t naught is the base temperature. Okay, and t infinitive is the surrounding temperature. T is the temperature at any distance x from the base. ठीक है, जो बेस है हमारा या जो सरफेस है उससे x डिस्टेंस पे जो भी टेम्परेचर होगा. तो फाइनल इक्वेशन एक ये आ गई थी, या तो इस फॉर्म में लिख लो या तो इस फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है. ठीक है, थीटा थीटा नॉट की वैल्यू डाल दिए. उसके बाद हीट फ्लो रेट भी हमने निकाला था इसमें. तो हीट फ्लो रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हीट फ्लो रेट हमने यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेट किया हुआ है. हीट फ्लो रेट के लिए मैंने बताया था कि जो एक्चुअली जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हमारी कंडक्शन की ही हीट है जो कि कन्वेक्टिव से निकल रही है. तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे कितनी हीट इंटर हो रही है उस फिन में हम वो निकाल लें तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो फिन है वो हमारी कितनी हीट सराउंडिंग में डिसिपेट कर रही है. ठीक है, तो उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया था. ये वैल्यू क्यू फिन हमें चाहिए, तो dt बाई dx हमें चाहिए. तो dt बाई dx ये जो इक्वेशन हमारी आई थी 6, उससे हमने 6 से t माइनस टी इन्फिनिटिव को ऐसे लिख दिया और फिर यहाँ से dt बाई dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 निकाल लिया. dt बाई dx कर दिया, फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 0 डाल दिया. तो x इज इक्वल टू 0 डाला तो ये वैल्यू आ गई. इस वैल्यू को जो इक्वेशन है ये q वाली इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास q फिन की वैल्यू आ गई थी. एंड थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल दी थी. ठीक है, और फाइनली वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ q फिन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग एज q फिन इज इक्वल टू ph ac t नॉट माइनस t इन्फिनिटी. ठीक है, ये हमने लिया था. ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, ये दोनों इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अब हम केस 2 की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमने केस 1 जो है कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो केस 2 की तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस मूव टू द केस 2. सो केस 2 में नए उस पे करता हूं ब्लैंक बोर्ड पे. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द case 2. Okay, so what is case 2? Case 2 is nothing but we will assume the tip of the fin to be insulated. ठीक है, तो जो टिप ऑफ द फिन है उसको या तो इंसुलेटेड मान लेंगे या तो ये मान लेंगे कि जो टिप ऑफ द फिन है उससे हीट बिल्कुल भी डिसिपेट नहीं हो रही है. ठीक है, तो हीट डिसिपेशन फ्रॉम अ फिन insulated at the टिप. ठीक है, टिप पे इंसुलेट कर दिया. टिप का मतलब कौन सा, जो फिन का लास्ट पॉइंट होगा. ठीक है, उसको हम टिप बोलते हैं. जैसा तुम्हें पता है यहाँ पे दिखाया था तुम लोगों को.
So as you can see, this is called tip. This is the tip of the fin. Okay, last point. This point is the tip. This is the tip. So in this second case, we are assuming that the tip of the fin is insulated. That means there is no heat transfer through this particular tip. ठीक है, इस टिप से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और जैसा मैंने बताया था, जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी है, वो इक्वेशन रेक्टेंगुलर फिन और सिलिंड्रिकल फिन दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अगर कभी आता है रेक्टेंगुलर फिन तो ये डायग्राम नहीं बनाना है, फिर ये बनाना है। ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल फिन आता है तो ये डायग्राम बनाना है। अगर आता है कि रेक्टेंगुलर फिन के लिए ड्राइव करो तो कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बनाना है और यहाँ पे तुम्हें इस तरह का एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, इस केस में जो एलिमेंट लेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, जो हम एलिमेंट लेंगे तो उस केस में ये डायग्राम भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। तुम्हें इस तरीके का एक डायग्राम स्मॉल इस तरीके का बना देना। उस केस में रेक्टेंगुलर के केस में इस तरीके का डायग्राम बनेगा। रेक्टेंगुलर फिन अगर लोगे और यहाँ से QX विल एंटर एंड QX प्लस DX विल लीव। ठीक है, एंड ये वाली सरफेस पीछे की चाहो तो दिखा देना, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिखाना चाहते हो तो इसको दिखा देना, ये जो सरफेस होगी हमारे पीछे की। ठीक है, इससे हमारा जो है Q कन्वेक्टिव निकलेगा, यहाँ से DQ कन्वेक्टिव निकलेगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, उसमें बाकी चीजों में कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहीं भी एरिया यूज किया ही नहीं है। ठीक है, हमने बस एरिया का सिंबल यूज किया है। वी हैव यूज्ड द एरिया सिंबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इस चीज से अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म में ले चाहे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले। ठीक है, तो दूसरा केस हम लोग लेके चल रहे हैं जिसमें हम फिन की जो टिप है उसको हम इंसुलेटेड मान के चल रहे हैं। पहला केस हमने लिया था कि हमने माना था इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, जैसे इस तरीके का कि ये x इजिकल टू इनफाइनाइट हमने माना था। ठीक है, तो उस केस में जो ये टिप का टेम्परेचर है लास्ट पॉइंट पे जाकर के ये T इंफिनिटी के बराबर हो रहा था, जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है इसके। ठीक है, तो दूसरा केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे केस के लिए ये भी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। पहले केस की इक्वेशन दूसरे केस के लिए वैलिड नहीं होगी, इसके लिए अलग से इक्वेशन हमें ड्राइव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं डिराइव इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए देखो, जो तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 है वो तो यूज होगी ही होगी, वो तो तुमको पता ही है। ठीक है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन इसमें डिफरेंट होगी। तो जैसा मैंने बोला, पहली बाउंड्री कंडीशन तो हर केस में सेम रहेगी। पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या थी? पहली बाउंड्री कंडीशन की अगर मैं बात करूं, पहले मैं यहां लिख देता हूं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो अगर पहली बाउंड्री कंडीशन की मैं बात करूं, जो पहली बाउंड्री कंडीशन हमने ली थी, ठीक है, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि क्या था, कि थीटा इजिकल टू क्या निकला था हमारा, थीटा नॉट निकला था। कहां पे? एट x इजिकल टू 0, एट x इजिकल टू 0। क्यों निकला था ऐसा? ऐसा इसलिए निकला था क्योंकि जो t की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? T0 के बराबर थी एट x इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन निकली थी। अब मैं दोबारा बार बार ये दिखाऊंगा नहीं तुम लोगों की थीटा इजिकल टू थीटा नॉट कैसे आया, ये मैं दिखा चुका हूं बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट केस में। ठीक है, तो वहां से तुम्हें ये पता होना चाहिए। दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो अब इस केस के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे इसने बोला कि इंसुलेटेड टिप एट द एंड, इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलेटेड टिप एट द एंड का मतलब क्या हुआ कि वहां से जो हीट ट्रांसफर होगा हमारे टिप से वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इंसुलेटेड हमने मान लिया। तो यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा, मान लो कि अगर तुम्हारा ये टिप है, ठीक है, इफ दिस इज योर टिप, this is your tip, then the Q from this tip will be 0. Okay, so Q will be 0. अब Q कौन सा Q 0 होगा? मान कोई भी Q मानेंगे, दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टिव Q मानता हूं तो कंडक्टिव Q की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो वो हमारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी होगा that will be 0 because the fin is taken as so the Q second will be second boundary condition will be Q will be minus K AC dt by dx at x is equal to what? L. At x is equal to L, because we have not taken here the insulated fin. Okay, we have taken the length to be L. Okay, we have not taken the length to be infinite, we have taken the length L. So at L, if it is a length L, the fin having a length L, okay, in that case the heat transfer from the tip will be 0 if the tip is insulated. Okay, so that's why this becomes 0. Okay, if the tip is insulated, as tip is insulated, अगर टिप हमारा इंसुलेटेड है तो ये 0 हो जाएगा।
ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये जीरो होने का मतलब हुआ कि देखो के तो जीरो हो नहीं सकता, एरिया जीरो हो नहीं सकता, ये दोनों जीरो हो नहीं सकते। इसका मतलब dt बाय dx की जो वैल्यू है at x is equal to L, that will be 0. Okay, so this will be the case, this will be the case of this will be the second boundary condition of the insulated fin. Okay, तो अब हमें ड्राइव करना है, अब हमें इसके लिए ये दोनों बाउंड्री कंडीशन का यूज करके और हमें C1 C2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो x इजिकल टू 0 पहली वाली कंडीशन को यूज करता हूं, तो कौन सी इक्वेशन को हमें यूज करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इक्वेशन नंबर 2 तुम्हें याद होनी चाहिए, मैंने बताया था कि थीटा इजिकल टू क्या होने चाहिए, थीटा इजिकल टू C1 e रेज टू द पावर mx प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस mx। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इसी को बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें ये C1 C2 चाहिए इन कंडीशंस के हिसाब से, इन बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से C1 C2 की जो वैल्यू है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। पहली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दो। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट होगी एट x इक्वल टू 0। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, यूजिंग 1, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन so if we are using the first boundary condition, then first boundary condition is nothing but theta is equal to theta naught at x is equal to 0. Okay, so we are going to apply this in this equation, this particular equation, or equation number 2. Earlier we have taken this equation as equation number 2. Okay, so put down this value. So theta is equal to क्या हो गया हमारा, इसको कर दो किसमें, put in 2, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में डाल दो। तो थीटा की वैल्यू थीटा नॉट हो गई, ठीक है। C1 e रेज टू द पावर x इजिकल टू क्या, 0 पे, x इजिकल टू 0 मतलब m इंटू 0 प्लस C2 e माइनस m इंटू 0, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग दिस टू बी C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू थीटा नॉट। दिस विल बी योर नेक्स्ट रिलेशन, ठीक है। तो इक्वेशन की नंबरिंग मुझे याद नहीं है, जहां तक मुझे याद है मैं उस हिसाब से नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। प्रीवियस की नंबरिंग मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं प्रीवियस में क्या लास्ट इक्वेशन की जो नंबरिंग थी हमारी, सर 8 थी। 8 थी, यस सर 9 होगी है। तो ठीक है, इसको 9 लिख देते हैं, ठीक है। Okay, so put this equation as equation number 9. Okay, now this is only one equation, you cannot find C1 C2 by using one equation, you will need the second equation. So how the second equation will come, as you know the second boundary condition, you have the second boundary condition that from the tip the heat flow is 0, that means dt by dx is equal to 0. So we will use now the second boundary condition for second equation, ठीक है। तो second equation जो C1 C2 के उसको निकालने के लिए फिर दोनों को solve करके तब जाके C1 C2 आएगा, ठीक है। So now we will use the second boundary condition, second boundary condition, okay। So the second boundary condition, as you know, the second boundary condition is what is the second boundary condition, it is dt by dx, the value of dt by dx at x is equal to 0 will be equal to what, 0, sorry, at x is equal to L, it is at x is equal to L, at length L it is 0. This is the boundary condition that we have discussed above, this one, okay। So this is 0, so now we will apply this boundary condition, okay। तो ये boundary condition लगाने के लिए तो पहले तुम्हें क्या होना चाहिए पता, हमें ये पता है कि ये जो थीटा है, ये थीटा तुम्हें पता है इक्वेशन नंबर जो 2 थी हमारी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या था कि ये जो हमारे पास देखो ये 2 था, इस 2 इक्वेशन में अगर मैं थीटा को t माइनस टी इंफिनिटिव लिख देता हूं तो t के टर्म्स में आ जाएगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 वाली इक्वेशन में थीटा को बस t माइनस टी इंफिनिटिव लिख दिया मैंने, तो t माइनस टी इंफिनिटिव विल बी इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर mx प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस mx। कंडीशन लगानी तो हमें dt by dx चाहिए होगा, ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू L डालेंगे, तब हमें बाउंड्री कंडीशन जो है ये वाली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, अब इससे dt by dx निकालेंगे पहले, तो dt by dx निकाल लो भाई, तो dt by dx निकाल लो भाई,
तो dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा m c1 e रेज टू द पावर mx प्लस, फिर यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, ये c2 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस m आ जाएगा, फिर c2, फिर e रेज टू द पावर माइनस mx। ओके, सो you will get this by differentiating e raised to the power minus x, mx का अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो मैं बता दूं, e raised to the power minus mx का डिफरेंशिएशन होता है e raised to the power minus mx, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में mx का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि वेरिएबल हमारा x है तो mx का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस m आएगा, तो इसीलिए इसकी जो टोटल डिफरेंशिएशन बनेगी वो बनेगी m इंटू ई रेज टू द पावर माइनस mx, ठीक है, माइनस m इंटू ई रेज टू द पावर माइनस mx, ठीक है। सो दिस यू विल गेट दिस क्वांटिटी। नाउ पुट डाउन दिस वैल्यू एट x इज इक्वल टू व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट dt बाय dx एट x इज इक्वल टू l, सो जस्ट पुट डाउन दिस at x is equal to l, so put x, the value of x to be l, so it is very simple. So dt by dx we want to calculate at what value, at x is equal to l. Okay, so just put down the value of x to be l, so this will be e raised to the power ml minus m c2 e raised to the power minus ml. Okay, so you are getting this. Okay, so what is the condition? The condition is that this dt by dx should be 0, so this should be 0. Okay, so what you are getting the equation, the second equation you are getting as, that's why you are getting the second equation as sorry, yeah, here, yes, so you are getting the equation as this, mc1 e raised to the power ml minus mc2 e raised to the power minus ml is equal to 0. Okay, so if you solve this, just rearrange this equation, so you will get as m, take m as common, you will get c1 e raised to the power ml minus c2 e raised to the power minus ml is equal to 0. m cannot be 0 because you know m is a quantity, ठीक है, this value cannot be 0, ठीक है, which is we have taken this m as root under hb by kac, so this cannot be 0, this cannot be 0. So what will be 0? 0 will be this equation, this inside bracket, inside the bracket, ठीक है, whatever quantity in the bracket that will become 0. So that's why the second equation you will get as c1, sorry, this is c1, yeah. So it is c1 e raised to the power ml minus c2 e raised to the power minus ml is equal to 0. So ये जो इक्वेशन आई थी ऊपर, इसको हमने दिया था नंबर 9, and now we will give this as number 10. Now for calculating the c1 and c2 you have to use these two equations, the equation number 9 and the equation number 10, you have to solve that, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन को यूज कर लो भाई, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बता देता हूं मैं, देखो सॉल्व करके तुम्हें, ठीक है, जो पहली इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब इक्वेशन 9 लिख देता हूँ। सो सॉल्विंग, नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग which one we are solving, we are solving 9 and 10, ठीक है, to find what, to find c1 and c2, we want to calculate this c1 c2 from 9 10. Okay, so I am writing the first equation now. First equation है हमारे पास c1 plus c2 will be equal to theta. Now this is the 9th number equation, your 9th number equation. Okay, and इसको मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें कुछ, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सही से इसको लिखता हूँ जिससे कि मेरे लिए आसान हो जाए, बार बार मुझे ये लाइन ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ c1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c2, मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें कुछ, थीटा नॉट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये पहली इक्वेशन ये थी हमारे पास 9th नंबर इक्वेशन, और जो तुम्हारे 10th आई है ये तो यहीं पे लिखी हुई है, देख ही सकते हो, c1, सॉरी दिस इज c1 e raised to the power ml प्लस, सॉरी माइनस इज माइनस ml minus c2 e raised to the power minus ml. Okay, this equal to 0. So you have to solve this equation and find out c1 c2, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दो किससे, e raised to the power ml से ऊपर वाले में, ठीक है, e raised to the ml से मल्टीप्लाई कर दी इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ भी आ जाएगा भाई e raised to the power ml, और यहाँ भी आ जाएगा e raised to the power ml, ठीक है। So if we'll solve this equation you will get so कैसे सॉल्व करेंगे, ये c1 और c1 यहाँ पे ले लो माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस,
और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द C2। सो C2 कितना आ जाएगा, यू विल गेट द C2, यहाँ पे आ जाएगा C2, और ये जो क्वांटिटी तुम्हारे पास आ रही है ये आ रही है e रेज़ टू द पावर ml प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस ml will be equal to theta naught e raised to the power ml, ठीक है। So you want to calculate this C2, so this C2 will be theta naught, okay, and inside the bracket it will be e raised to the power ml divided by e raised to the power ml plus e raised to the power minus ml. So you will get this as C2, okay. So you have calculated the C2, now you have to calculate the C1 also. So how we will calculate C1? You will use the equation number 9. Equation number 9 for C1 use 9. Use 9. 9 is C1 plus C2 is equal to theta naught. Okay. So C1 you have to calculate. C2 you are known. The C2 is nothing but this one theta naught. Put down the value of this e raised to the power ml, e raised to the power ml plus e raised to the power minus ml is equal to theta naught. Okay. So if you calculate this, finally you will get C1. I am writing down the direct value of C1. Okay. I am writing the direct value of C1. You will get the C1 as theta naught. कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने 9 यूज किया, तुम 10 भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बट फाइनली क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है C1 और C2 को। तो जो C1 की वैल्यू आएगी ये आएगी e raised to the power minus ml divided by e raised to the power ml plus e raised to the power minus ml. You will get this. Okay. So the value of C1, C2 is now known to you. Now you can put this value of C1, C2 in the equation, basic equation, which is your equation number 2, ठीक है। और सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो C1, C2 हमने कैलकुलेट कर लिया है भाई। तो C1, C2 अगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम C1, C2 की वैल्यू डाल देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। सो नाउ वी विल यूज C1, C2 in equation number 2, the basic equation. Okay. So just put down the value of C1, C2. What is the equation number 2? Equation number 2 is nothing but the general equation theta is equal to C1 e raised to the power mx plus C2 e raised to the power minus mx. Okay. So this is the equation. Just put down the value of C1, C2 in this equation and solve this. So theta will be equal to now C1. The value of C1 we have calculated as theta naught e raised to the power minus ml divided by e raised to the power ml plus e raised to the power minus ml. We have calculated as this, multiplied by e raised to the power mx plus C2. Again we have to put down, sorry, the value of C2 we have to put down here, not C2. It will be the value of C2 we have to put. So value of C2 we have got as theta naught e raised to the power ml divided by e raised to the power ml plus e raised to the power minus ml. We have find out this, multiplied by e raised to the power minus mx. Okay, so we have got this. Now just rearrange the term. Yesterday I have discussed the equation sin h mx as well as cos h mx की वैल्यू, वो मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। उसके टर्म्स में इसको लेके जाएंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई है उसको, ठीक है। पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, शॉर्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे थीटा नॉट, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी e रेज टू द पावर, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एम एल माइनस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय तो यही रहेगा e रेज टू द पावर एम एल प्लस e रेज टू द पावर माइनस एम एल, ठीक है। ये तो ठीक है, ये दूसरी क्वांटिटी में आ जाते हैं, ये थीटा नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर एम एल माइनस एक्स, ठीक है, सीधा सीधा, और e रेज टू द पावर एम एल प्लस e रेज टू द पावर माइनस एम एल। ओके, so we can write down like this, ठीक है। So if we'll solve now, just take theta naught common, थीटा नॉट को कॉमन ले लो। थीटा नॉट को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा e रेज टू द पावर m l माइनस एक्स। पहली देखो, पहले ये वाले टर्म मैंने पहले लिख दिए, ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस वाले टर्म मैंने बस पहले लिखी है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस e रेज टू द पावर, माइनस वाली बाद में लिख दूंगा, ये माइनस वाली लिख रहा हूं, माइनस
एम एल माइनस एक्स। ये वाले टर्म मैंने बाद में लिखी, ये वाले टर्म पहले लिख दी, ठीक है, और कुछ नहीं किया। डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर एम एल प्लस e raised to the power minus m. Okay. So this is the equation that you are getting now. Now just convert this equation into what? Into cos mh and sin mh. Okay, so cos mh, just here you will see, tomorrow I have discussed yesterday I have already told you the value of cos mh and sin mh. यहाँ पे मैंने लिख के बताया था, ये यहाँ पे देखो cos mh की वैल्यू क्या होती है, cos h mx की वैल्यू क्या होती है, e raised to the power mx plus e raised to the power minus mx divided by 2. Okay, so this is the value of the cos mh, ठीक है, cos h mx, ठीक है। सो cos h mx के टर्म्स में जो हमने अभी इक्वेशन ड्राइव करी है उसको हमें लिख देना है, ठीक है। cos h mx के टर्म्स में ये देख लो, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी देख लो भाई, ये यूज करने वाले हैं अभी हम, ये वाला, ये हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं बैक दोबारा से, वहीं पे जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी है, सो दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, तो देखो 2 से अगर ऊपर डिवाइड कर दें और 2 से नीचे डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्या cos, ये तो यहां से अगर 2, अगर मैं क्या करूं इसको, अगर मैं क्या करता हूं कि इसको मैं लिख देता हूं थीटा नॉट, ठीक है, और 2 से ऊपर डिवाइड कर दूं, e रेज़ टू द पावर m l माइनस x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस m l माइनस x डिवाइडेड बाय 2 अगर कर देता हूं उसको, और नीचे भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, ये e रेज़ टू द पावर ml प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस ml डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू क्या है, ये है हमारी cos h mx होती है, ठीक है। अगर यहाँ x होता तो ये क्या हो जाएगा, cos h m l माइनस x, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं cos h m l माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ ml है, तो ml के केस में क्या आ जाएगा, cos h ml, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन, इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो ये लिख लिया भाई। अब थोड़ा सा देखो भाई, मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों से और दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि ये एचएमटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि देखने से पता नहीं चलेगा, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। अगर तुम जस्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, यू विल बी नेवर एबल टू डिराइव द इक्वेशन, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन है मैं बता दूं, ये इंसुलेटेड टिप का और ये तुम्हारा जो इसके पहले जो कराया था, ये दोनों डेरिवेशन में से कोई एक एग्जाम में आता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में। तीसरे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा अभी, ठीक है। तो ऑलरेडी देख सकते हो कितने बड़े बड़े डेरिवेशन है। सो यही एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि तुम लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होगे और साथ के साथ कर रहे होगे, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब आगे ये किसकी वैल्यू थी, ये थीटा की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा अपॉन थीटा नॉट मतलब t माइनस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नाउ दिस क्वांटिटी इज व्हाट, cos h m l minus x, okay, divided by cos h ml, okay. So you will get this as the final equation for insulated tip, ठीक है। You will get this final equation for insulated tip. This is your final equation, this one,
This is your final equation. So let me call this as equation number, I think it is last equation we have numbered as 10. So this is 11. Okay, so 11 number equation. Now you have calculated the theta upon theta naught. Okay, but still you have to calculate the q fin. q fin जैसे पिछले में निकाला था वो इक्वेशन भी हमें चाहिए होगी q fin की. तो अब आगे हम इसमें q fin की जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो q fin निकालेंगे आगे. ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, ये इंसुलेटेड टिप के लिए हो गया. ठीक है, अब आगे हम q fin कैलकुलेट करते हैं. द रेट ऑफ, वी ऑल्सो वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ heat flow, the rate of heat flow from the fin. ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं है और तुम लोगों का वो क्विज भी लेना है, क्विज इज कंपलसरी. सो ये हम जल्दी जल्दी कर लेंगे. ठीक है, गिवन बाय द रेट ऑफ हीट फ्लो की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी क्यू फिन. ठीक है, एंड क्यू फिन विल बी माइनस के ए सी as you know dt by dx at x is equal to 0. जो फिन से हमारा हीट ट्रांसफर होता है, मैंने बताया था जो कंडक्शन के थ्रू एंटर कर रहा है उस फिन में, वही हीट जो है हमारा फिन क्या करती है, ट्रांसफर करती है. जो रेट जो है वो हमारा फिन से सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाता है, जो भी हीट हमारे आती है. तो बस इसी को सॉल्व करना है भाई. अब तुम्हें ऑलरेडी पता है यहाँ पे t माइनस टी इंफिनिटी की तो इक्वेशन है ही, तो dt by dx यहाँ से निकल जाएगा इस इक्वेशन का यूज करके. 11 नंबर इक्वेशन का यूज करेंगे तो 11 नंबर इक्वेशन का यूज करके मैं ये लिख सकता हूँ कि t माइनस टी इंफिनिटी विल बी इक्वल टू t नॉट माइनस टी इंफिनिटी cos h m l माइनस x डिवाइडेड बाय cos h m l. ठीक है, cos h m l. दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव फ्रॉम 11 मैंने लिखा है, 11 इक्वेशन से लिखा है. ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं हमें चाहिए क्या, dt by dx चाहिए. किस पे, 0 पे, तभी निकाल पाएंगे. तो dt by dx निकाल लो भाई. dt by dx किस पे, x is equal to 0 पे. ठीक है, तो dt by dx करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt by dx आ जाएगा. ठीक है, तो dt by dx, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, मैं बस इसको लिख देता हूँ dt by dx, x is equal to 0 बाद में पुट करेंगे dt by dx. तो dt by dx अगर करोगे तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे cos m है, यहाँ पे m है, इसमें भी x है और इसमें x नहीं है. ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. cos h m l माइनस x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिफरेंशिएट इसको करोगे तो ये आएगा माइनस m आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है. ठीक है, क्योंकि माइनस साइन होता है इसका, cos h का माइनस साइन होता है. ठीक है, तो माइनस साइन हो गया, ये t नॉट माइनस टी इंफिनिटी. ठीक है, और ये क्वांटिटी आ जाएगी साइन h m l माइनस x डिवाइडेड बाय, नीचे तो है ही नहीं x, तो नीचे तो वेरिएबल है नहीं, तो ये तो वही रह जाएगा. ठीक है, m l cos h m. ठीक है, डिफरेंशिएट करके. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो साइन h m l माइनस x आया. ठीक है, और cos h m l आ गया. ठीक है, अब x इजिकल टू कितने पे चाहिए, x इजिकल टू 0 पे चाहिए, तो इसमें डाल दो भाई x इजिकल टू 0 पुट कर दो. ठीक है, तो x इजिकल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं इसमें, इस इक्वेशन में x इजिकल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, माइनस m तो माइनस m ही रहेगा. ठीक है, t नॉट माइनस टी इंफिनिटी तो t नॉट माइनस टी इंफिनिटी भी रहेगा. ये 0 का पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन h m l डिवाइडेड बाय cos h m l. ठीक है, so you will get this as minus m t naught minus t infinitive, और ये कितना हो जाएगा, sin h m l upon cos h m l कितना हो जाएगा, tan h m l. ठीक है, so you will get this tan h m l. now put down this dt by dx. what we have calculated, we have calculated this dt by dx at x is equal to 0. Okay, so now put this dt by dx at x is equal to 0 in this equation q fin. In q fin, if you will put down this equation, what we will got, q fin will be equal to what, there is a minus, you know that there is a minus kac. ठीक है,
and we are putting down the value of this, so this will become minus m t naught minus t infinitive, ठीक है, tan h ml, ठीक है. So this minus minus become plus, so this minus minus become plus, this minus and this minus become plus. Okay, so finally you are getting as KAC m t naught minus t infinity tan h ml. Okay, so you are getting this. Now put down this value of m. What is m? m is root under hp by kac. तो ये डाल देंगे. तो अगर m की वैल्यू डाल दूं तो kac हो गया, और m की वैल्यू मैंने डाल दी hp by kac, ठीक है, t नॉट माइनस t इंफिनिटी tan h ml. Okay, so you are getting this. Now what you have to do, you have to just rearrange this term, ठीक है. AC ऊपर आ जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व करके रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वही क्वांटिटी जो पिछली इक्वेशन में आई थी. अगर ध्यान दिया होगा तुमने तो वहां पे भी यही क्वांटिटी आई थी रूट अंडर में, लास्ट इक्वेशन में, ठीक है. और इसमें भी सेम क्वांटिटी ही आ रही है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, रूट अंडर PHKAC tan h ml, ठीक है. तो अगर लास्ट इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे जो कि हमने डिराइव करी थी, किसके लिए, जो कि हमने डिराइव करी थी इनफाइनाइट फिन के लिए, तो ये क्वांटिटी सेम ही थी वहां पे भी, ठीक है. ये क्वांटिटी अगर देखोगे तो वहां पे भी सेम ही थी, बस क्या डिफरेंस था, डिफरेंस ये वाला टर्म था, ये वाली टर्म वहां पे नहीं थी हमारी, ठीक है, वहां पे दूसरी टर्म थी, ठीक है. तो इस तरीके से देख सकते हो कि जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारा ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे डिराइव करी है, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन है फिन विथ insulated tip के लिए. So you have to also remember this equation. This is very very important. This is very very important. You have to remember equation number. Let me call this equation number. I think last equation we have numbered as 11. So this should be 12. Okay. किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी बता दो, और जाके क्विज अटेम्प्ट कर लो बेटा. अब क्योंकि टाइम नहीं है आगे डिस्कस करने का मेरे पास बिल्कुल भी. अगर क्विज हो गया है तो क्या कहते हैं, अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत हो, ये जो डेरिवेशन करा है, तो इसमें पूछ सकता है. सर क्विज में 4 क्वेश्चन है बस. कितने, 5 होंगे? 4 है सर. ये वाला जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फिन एंड इन अ पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर सिस्टम. वही है. अच्छा 4 है इसमें. तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही है, 4 दे दो.